પુણ્યશાળી ભગવાનની ભૂમિકા આગે હે મેં નિહાળી ભગવાનની ભૂમિકા આગે હે મેં નિહાળી અમે કેવા ભાગ્યશાળી અમે કેવા ભાગ્યશાળી જ્ઞાની પુરુષ પાસે મુક્તિની ચાવી પાડી જ્ઞાની પુરુષ પાસે મુક્તિની ચાવી પાડી અમે કેવા પુણ્યશાળી અમે કેવા પુણ્યશાળી આદમ સ્વરૂપ થાઓ એ માર્ગ મુક્તિનો છે આગમ સ્વરૂપ મુક્તિનો છે સપ્ત ક્રમશ માંગું આસ્વાદ શુદ્ધિનો છે સમાવું આસ્વાદ શ્રુતિનો છે આસ્વાદ શુદ્ધિનો છે આસ્વાદ શ્રુતિનો છે વાંધાની પ્રકાશ વાંધાને પ્રકાશ અજ્ઞાન માન્ય થાઓ એની દિવી ઉડાવી અજ્ઞાન માન્યતાઓ એણે દીધી ઉડાવી અમે કેવા પુણ્યશાળી અમે કેવા પુણ્યશાળી અમે કેવા ભાગ્યશાળી અમે કેવા ભાગ્યશાળી ઓકે, જય સચ્ચિદાનંદ. નવ કલમો, खुशी अहमदाबाद. हाँ, जय सच्चिदानंद. तीनों ऑल्टरनेट करना. ओके ओके. हे दादा भगवान, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માનો કિંચિત માત્ર પણ અહમ ન દુભાય, ન દુભાવાય કે દુભાવવા પ્રત્યે ન અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માનો કિંચિત માત્ર પણ અહમ ન દુભાય એવી શાદ્વાદ વાણી, શાદ્વાદ વર્તન અને શાદ્વાદ મનન કરવાની પરમ શક્તિ આપો. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ ધર્મનો કિંચિત માત્ર પણ પરમાણ ન દુભે, ન દુભાય કે દુભવા પ્રત્યે ન અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો.
મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માનો કિંચિત માત્ર પણ પરમાણ ન ડૂબે એવી શાદ્વાદ વાણી, શાદ્વાદ વર્તન અને શાદ્વાદ મનન કરવાની પરમ શક્તિ આપો. हे दादा भगवान, મને કોઈ પણ દેહધારી ઉપદેશક, સાધુ, साध्वी के आचार्य अवनवाद, अपराध, अविनय न करने की परम शक्ति आपो. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માનો કિંચિત માત્ર પણ અભાવ તિરસ્કાર ક્યારે પણ ન કરાય, ન કરાવાય કે કરતા પ્રત્યે ન અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માની સાથે ક્યારે પણ કઠોર ભાષા, તંતીની ભાષા ન બોલી જાય, ન બોલવાઈ જાય કે બોલવાના પ્રત્યેના અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. કોઈ કઠોર ભાષા, તંતીની ભાષા બોલે તો મને મૃદુ રુજુ ભાષા બોલવાની પરમ શક્તિ આપો. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્મા કે પ્રતિ સ્ત્રી, પુરુષ યા નપુંસક ગમે તે લિંગધારી હોય તો તેના સંબંધમાં કિંચિત માત્ર પણ વિષય વિકાસ સંબંધી દોષો, ઈચ્છાઓ, ચેષ્ટાઓ યા વિચાર સંબંધી દોષો ન किया जाए, न करवाया जाए કે કરતા કે પ્રતિના અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. અને નિરંતર નિર્વિકાર રહેવાની પરમ શક્તિ આપો. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ રસમાં લુબ્ધપણું ન કરાય એવી શક્તિ આપો. સમરસી ખોરાક લેવાય એવી પરમ શક્તિ આપો. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માનો પ્રત્યક્ષ અથવા પરોક્ષ, જીવંત અથવા મૃત્યુ પામેલાનો કોઈનો પણ કિંચિત માત્ર પણ અવર્ણવાદ, અપરાધ, અવિનય ન કિયા જાય, ન કરવાયા જાય કે કરતા કે પ્રતિના અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. હે દાદા ભગવાન, મને જગત કલ્યાણ કરવાનો નિમિત્ત બનવાની પરમ શક્તિ આપો, શક્તિ આપો, શક્તિ. જય સચ્ચિદાનંદ. Column number 9. હે દાદા ભગવાન, મને જગત કલ્યાણ કરવાની નિમિત્ત બનવાની પરમ શક્તિ આપો, શક્તિ આપો, શક્તિ આપો. જય સચ્ચિદાનંદ. Okay, પ્રદીપ દાદા, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાન. જે મંત્ર બોલાય બાળકો ફોલો કરે. નમો વિતરાગાય, નમો વિતરાગાય, નમો અરિહંતાણમ, નમો અરિહંતાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો ઉવઝાયાણમ, નમો ઉવઝાયાણમ, નમો લોય સવ સાહુણમ, નમો લોએ સૌ સાહુણમ, એસો પંચન મુક્કારો, એસો પંચન મુક્કારો, સવપા વપણાસણો, સૌવપવપનાશણો, મંગલાણમ ચ સવ્વેસીમ, મંગલાણં ચ સૌવેસિં, પડમમ હવૈ મંગલમ, પડવં હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. દર્શના, डेली प्लेयर. हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपने हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने. मैं पढ़ाई में हमेशा सिंसियर रहूंगी
मैं बुरी सोहबत और कुसंग से हमेशा दूर रहूंगी। और कुछ भी हो, मेरा सत्संग कभी ना छूटे, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काय का योग और अपनी आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र की सेवा में ही करूं, जो सबसे बड़ा मानव धर्म है। मैं हमेशा अपने स्वयं और अन्य सभी लोगों के जीवन व्यवहार में विश्वसनीय, नैतिक और शुद्ध बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान जैसे परम उत्कर्ष अस्तित्व की मानवी बन पाऊं। आगे हमेशा अपने माता पिता की बात सुनने का संकल्प लेती हूँ। उन्हें कभी भी अहंकार से जवाब नहीं दूंगी। कृपया इस संबंध में मुझे अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान करें। जय सच्चिदानंद। अच्छा, कितना दिन से किधर गए थे आप लोग वेकेशन में? एग्जाम्स थे। एग्जाम थी तो क्या दादा दादा के सत्संग नहीं आने का होता है? कितना 24 आवर्स पढ़ते हैं आप एग्जाम में? नहीं, तो ये खुशी की अब एग्जाम चलती है वो तो आती है। अब कौन सा स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं? 7th। 7th में? तो इतना बहुत पढ़ेगा तो कॉलेज में तो खाने का भी टाइम नहीं मिलेगा। हाँ, क्यों इतना पढ़ने का होता है कि अभी टाइम नहीं मिलता है आने का? कि अच्छा नहीं लगता है सत्संग में आने के लिए? लगता हाँ, है। तो के स्टडी प्रेयर चिनाई। जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधाएं अंतराय आते हैं, जो भी ऑब्स्ट्रक्शन आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप ऐसी कृपा करें कि जिससे मेरा दर्शन ऊपर का आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो, ऐसी आप मुझे परम शक्ति दें। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। दिव्या। हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, हमने आपके बच्चे, हमने हमने आपके अच्छे दिल के है सच्चे, दिल के हैं सच्चे, फिर भी है कुच्चे, फिर भी है कच्चे, काम करेंगे अच्छे, काम करेंगे अच्छे अच्छे। जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। ओके, दादा भगवान से प्रश्न प्लेयर हिंदी पुणे। हे शुद्धात्मा दादा भगवान, आप अलग हैं, दर्शना अलग है। हे शुद्धात्मा दादा भगवान, आप रियल हैं, दर्शना रिलेटिव है। हे शुद्धात्मा दादा भगवान, आप परमानेंट हैं, दर्शना टेम्परेरी है। ओके, वेरी गुड। गुजराती खुशी अहमदाबाद। जय सच्चिदानंद। हे શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે જુદા છો, ખુશી જુદી છે. હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે રિયલ છો, ખુશી રિલેટિવ છે. હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે પરમાનન્ટ છો, ખુશી ટેમ્પરરી છે. જય સચ્ચિદાનંદ. हे दक्ष, दक्ष अनम्यूट करो दक्ष। अनम्यूट करिए। हाँ दक्ष, जय सच्चिदानंद। दक्ष, जय सच्चिदानंद। आपको ये सब प्रेयर आती है? मुझे पढ़ाई वाली आती है और मुझे जो अभी ये दो प्रेयर नहीं आती है। ओके, वेरी गुड। तो आपको 9 कलम आता है? नहीं। तो आपको मम्मी को बताना कि आपको सीख जाने का है। ओके, हाँ, आपको मालूम है 9 कलम क्या है? नहीं। नहीं? मोनिका दीदी, नंबर 1 हाँ। बोलिए। हे दादा भगवान, મને કોઈ પણ ભેદારી જીવાત્માનો કિંચિત માત્ર પણ અહમ ના દુબે ના દુબાય કે દુબા પ્રતિ ના અનુમોદા એવી પરમ શક્તિ આપો. મને કોઈ પણ ભેદારી જીવાત્માનો કિંચિત માત્ર પણ અહમ ના દુબે
એવી સ્યાદવાદવાણી સ્યાદવાદ વર્તન અને સ્યાદવાદ મનન કરવાની પરમ શક્તિ આપો. ओके ऐसा मम्मी को बोलना 9 कलम के आपको पक्का करने का है, ठीक है दक्ष? ठीक है, हाँ वेरी गुड, ओके वेरी गुड. ओके तो होमवर्क किसको मालूम है क्या है? ओके करिश्मा को मालूम है? हाँ बोलो आपका स्कोर क्या है, कितना यस कितना नो आपका गुरु को बोला? गुरु मोनिका दीदी को मैंने नो बोला था एक बार, और गुरु खुशी दीदी को मैंने नो बोला था एक बार, और गुरु पापा को मैंने यस बोला था, और गुरु मम्मी को भी मैंने यस बोला था. कितनी दफा दिन में? पापा को ओ कल काउंट करने का. ओके एवरी टाइम यस और नो बोलते हैं. ओके खुशी अहमदाबाद चिनाई. हाँ जय सच्चिदानंद. आज मैंने मेरी गुरु दीदी को 5 टाइम्स यस बोला था, और गुरु मम्मी को मैंने 2 टाइम्स यस बोला था, गुरु पापा को मैंने 1 टाइम यस बोला था. आज नो नो डिक्शनरी में आज नो नहीं था आपका? नहीं. क्या बात है, वेरी गुड. मोनिका दीदी हाँ जय सच्चिदानंद. आज मैंने मम्मी को 2 बार नो बोला था और क्या? एक किसको बार yes. किसको किसको? गुरु मम्मी को. ओके गुरु मम्मी को मैंने 2 बार मना किया और एक बार हाँ की, और पापा को आज मैं गुरु पापा को आज मैंने एक बार हाँ की. और ये छोटे गुरु को? करिश्मा को किया था. ओके तो मम्मी को 2 दफा क्यों? अभी आपको क्या कहा है? आपको घर छोड़ने का है, दूसरे घर पे जाने का है? नहीं, वो खुशी जब मैंने जो कहा वो हाँ तो किया, बट वो नहीं किया वो काम, तो मैंने मम्मी को बोला तो मम्मी ने कहा उसे छोड़ दो, तो मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया. ये और एक मम्मी को क्या कहा आपने? मैंने ये कहा कि खुशी वो जो मैंने मैथ्स के फॉर्मूला दिए वो पढ़ाई नहीं कर रही है, तो वो आपका काम नहीं है. गुरु दूसरे गुरु को नहीं बोलते, अपने गुरु को. इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. समझ में आया? हाँ मम्मी को बोलने की क्या मतलब है? हाँ समझ में आया? हाँ. अगर आप क्या बोलते हैं करिश्मा के गुरु है, तो आपको आपकी गुरु की जिम्मेदारी अदा करनी है. फिर आप बोलेंगे कंप्लेन करेंगे आपके गुरु को, तो वो गुरु तो ऐसे ही डांटेंगे ही ना आपको. हाँ समझ में आया? हाँ और ये कब होता है? जब आप कुछ नहीं कर सकते ना करिश्मा से, इसीलिए फिर आप मम्मी को बोलते हैं. समझ में आया इसके पीछे की साइकोलॉजी? हाँ. इससे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझ में आएगी और आपको कैसे हैंडल करना वो भी समझ में आएगा. समझ में आया? हाँ जस्ट कंप्लेनिंग इज नो सॉल्यूशन. हाँ ख्याल में आया? हाँ. यही सच्चिदानंद. ओके खुशी जय सच्चिदानंद. मैंने आज गुरु दीदी को हाँ यस बोला था, और गुरु मम्मी को एक बार नो बोला था. क्यों? वो क्या हो गया था? हाँ वो दीदी की 11th और 12th की बुक्स थी, तो मम्मी ने कहा था कि ये देख ले, सिर्फ इतना ही काम है तेरा. तो मेरे को गुस्सा आ गया, मेरे को ट्यूशन जाना है, लेट हो रहा है इसलिए. ओके देखो इसमें एक बात समझना है, लेकिन अगर वो काम करते करते आप ट्यूशन में लेट होते हैं तो उसकी जिम्मेदारी आपकी होती है कि मम्मी की होती है? मेरी होती है. हाँ मेरी होती है. नहीं, मम्मी की होती है. आपको मम्मी को बता देना चाहिए कि ट्यूशन में लेट होगा, लेकिन आपने कहा है तो मैं करती हूँ. समझ में आया? तो गुस्सा होने का कारण नहीं बनेगा.
लेकिन आपको जानकारी देनी है कि अगर मैं ये करूंगी तो मैं ट्यूशन में लेट हो जाऊंगी। ये हम बहुत एक प्रकार से हम डीलिंग सीखते हैं कि कैसे हमारे गुरु को हम ना भी नहीं बोलते हैं और उनको बता भी देते हैं कि ये परिस्थिति है, अब आप कहो वैसे मैं करूंगी। समझ में आया? समझ में आया? क्या बोलते हैं, मम्मी है डैडी है, कौन है वहां पर? मम्मी। हाँ मम्मी। हाँ, मम्मी गलत नहीं है। कई बार कोई बात कुछ बात आउट ऑफ साइट हो सकता है। समझ में आया? हाँ। लेकिन आप गुस्सा करेंगे तो आप गलत हो जाएंगे ना। समझ में आया? हाँ। जब आप गुरु को फॉलो करते हैं तो उसका जो भी परिणाम आता है वो आपकी जिम्मेदारी नहीं है। ख्याल में आया? फिर हाँ। अगले टाइम वो भी बताने के लिए सोच के बताएंगे कि अभी तो ट्यूशन का टाइम हो गया तो अभी मुझे नहीं बताना चाहिए। समझ में आया? हाँ। जय सच्चिदानंद। आरुष। हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मैंने मम्मी को यस बोला था, गुरु मम्मी को यस बोला था। एक ही दफा बोला? मम्मी के साथ एक ही दफा बात किया? ए बच्चे नहीं। लोग एक एक बात क्यों बोलते हैं? काउंट करने का है, कितने दफा हाँ बोलता है कितने दफा ना बोलता है। उसकी गुड कॉन्वर्सेशन होता है तो यस। ओके कल पूरा करना। ओके, ये तो इम्पोर्टेंट। ये वीक सारा दिन ये अपना डीलिंग्स गुरु के साथ कैसे करने का वही सीखने का है, दूसरा कुछ नहीं सीखने का है। इसलिए जब हम पूछा ही नहीं कि किसने रिपोर्ट्स क्यों नहीं भेजा है। दरअसल हाँ, जय सच्चिदानंद। मैंने आज गुरु मम्मी को एक बार नो बोला था और 2 बार यस बोला था, और मैंने गुरु पापा को एक बार यस बोला था और एक बार नो बोला था। क्या हो गया था? नो बोलने की जरूरत क्या है आपको गुरु को? हाँ, वो पापा बोल रहे थे कि बाहर अंदर फोन से मत खेल, बाहर जाके खेल, तो मैं बोल रहा था कि थोड़ी देर के बाद जाऊंगा। तो पापा के साथ डीलिंग करने का कि इट इज ओके, ऐसा पूछा नहीं? तो बाद में गुरु बोलते हैं ऐसे करने का। और मम्मी को मम्मी को गुरु मम्मी एक बार, सॉरी गुरु मम्मी को हाँ, गुरु मम्मी को एक बार मम्मी बोल रही थी कि बाहर से दही ला के दे, तो मैंने ना बोल दिया। क्यों? आलस आ गई थी। ये मालूम है गुरु को ना बोलने का पनिशमेंट फ्यूचर में कितना मिलेगा मालूम है आपको? ओके दक्ष, आपने होमवर्क किया? हाँ, मैंने आज गुरु मम्मी को 5 बार हाँ बोला था और 2 बार ना बोला था। क्यों ना बोलने का क्या अवस्था था? मैंने एक बार ना इसलिए बोला था क्योंकि मम्मी ने पालक पनीर की सब्जी बनाई थी और उसमें पनीर नहीं थी। तो क्या हो गया? आपको पसंद नहीं है खाने का पनीर के बिना? नहीं। ओ पसंद हो भी प्रदीप दादा आपको बात ही करेगा पसंद नहीं पसंद का। ओके ओके दर्शना, आप तो नहीं आए पर आई डोंट अंडरस्टैंड कि एग्जाम होती है कि सत्संग क्यों छूट जाता है, वो जरा सोचने की बात है। ओके प्रदीप दादा बहुत बातें करेगा आपको। और अभी अभी चलता है ये वीक में। दर्शना आपको गुरु कौन है? मेरी मम्मा, पापा और मेरा भाई। ओके तो अभी कल कितना हाँ बोलता है कितना ना बोलेगा? ओके खुशहाल, खुशहाल यस। आपका गुरु कौन है? मम्मा, पापा, दीदी। ऐसे मत बोलो, गुरु मम्मा गुरु पापा ऐसे बोलो। मम्मा, गुरु पापा और गुरु दीदी। डी। ओके ओके वेरी गुड। ओके दीपिका यू वांट टू से समथिंग? जस्ट 1 मिनट। ऐसा बताया है मोक्ष मूलम,
गुरु आज्ञा। बोलो सब लोग, क्या है? मोक्ष मूलम गुरु आज्ञा। यानी गुरु की आज्ञा पालन करेंगे तो आपको मोक्ष मिलेगा। और मोक्ष का पहला चरण जो है वो फ्रीडम है, मुक्तता, जिम्मेदारी आपकी नहीं। तो ये छोटी बात है, बहुत बड़ी बात है? छोटी बात है, बहुत छोटी बात है। बहुत बड़ी बड़ी बात है। अरे इसमें मोक्ष भी आ गया, तुम्हारा व्यवहार भी आ गया। समझ में आया? तो जहां जहां हमने ना बोला है ना, वहां बहुत प्रतिक्रमण करना है। समझ गए? गुरु कुछ भी बोले, अगर आपने वो किया तो आपकी जिम्मेदारी नहीं है, जो भी परिणाम आया, लेकिन उनके कहे अनुसार करना होता है। और अगर बात उल्टी हो जाती ना, तो वो भी जिम्मेदारी गुरु की होती है, क्योंकि उन्होंने कहा आपको करने को। तो आपकी जिम्मेदारी, आप फ्री हो जाए तो अच्छा है, कि बोझा है तो अच्छा है? ये डैडी मम्मी को इसीलिए सुनना है, ओबीडियंस। जय सच्चिदानंद। ओके प्रदीप, आपने सुना सब। गुरु को ना बोलने का, खाने का अच्छा नहीं लगता है ना बोलने का। एग्जाम है तो सत्संग में नहीं आने का। आके बोलो। ये बात ऐसी है कि पहले हमें ये समझना चाहिए कि मुझे सत्संग में क्यों रहना है, और सत्संग के अलावा दूसरा जो भी वातावरण है, जो भी संग है, तो हमें उसमें से एक तारण निकालना है कि मैं सत्संग में जब जाता हूँ या जाती हूँ तो उसमें मुझे क्या फायदा होता है, क्या अनुभव होता है। और दूसरा, सत्संग छोड़ने के बाद मैं दूसरे जो भी वातावरण में मैं रहता हूँ या रहती हूँ तो मुझे क्या अनुभव होता है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि सत्संग क्या चीज है। कोई भी चीज की हमें वैल्यू जब समझ में आ जावे तो फिर आपको बोलना नहीं पड़ेगा कि आप सत्संग में आओ। अब समझ में आया? अपनी प्रकृति, आपकी समझ आपको सत्संग में स्थिर रखेगी, लेकिन ये समझ की बहुत जरूरत है। दूसरा जो खाने पीने की बात है, तो प्रदीप दादा, खाने की बात पर बाद में बताना, पर ये जो उसको सत्संग में आके एग्जाम में क्या फायदा होता है वो बताइए। देखो, एग्जाम में आप जो पढ़ाई करो तो उसमें कंसंट्रेशन की जरूरत पड़ती है। तो जो अगर आप सत्संग में आओगे तो आपको ज्यादा हेल्प होगी। और दूसरे वातावरण में अगर आप रहोगे तो पढ़ाई के टाइम पे आप पढ़ाई करने बैठोगे तो आपको डिस्टरबेंस आ सकता है। ये आपको अनुभव ही है कि नहीं है? दर्शना है। तो हमें ये खुद को, ये सत्संग पहले भी बात हुई है, अपने खुद को ऑब्जर्व करना है कि मैं ये वातावरण में रहने से मुझे क्या फायदा मिलता है, क्या नुकसान होता है। सत्संग में रहने से मुझे क्या फायदा होता है, बराबर ना? दूसरा, इनके आगे की बात बताता हूँ। दादा भगवान कहते थे कि हमारा मन और बुद्धि जब हमें बतावे, अंदर से बोले कि मुझे सत्संग में नहीं जाना है, तो आपको क्या करना चाहिए, उसके साथ कैसे डीलिंग करोगे? तो कि देखो, क्यों नहीं जाना है, चलो 10 मिनट जाके आते हैं। आप जो बोलोगे वो करेंगे। आपको क्या करना है? चलो सत्संग में नहीं जाना है तो क्या करना है? दर्शना तो क्या आराम करना है, खेलना है, क्या करना है? आप मुझे बताओ। वो बोलेगे मुझे ये करना है। ठीक है,
ये हम बाद में आपको टाइम देंगे, लेकिन अभी सत्संग का टाइम हो गया है, तो प्लीज अब 10-15 मिनट आधा घंटे के लिए मेरे साथ चलो, फिर बाद में मैं आपको पूरा सपोर्ट करूंगी। तो हमें ये प्रकृति के साथ हमारी जो अंदर अंडरस्टैंडिंग है, उनको हमें उनके साथ कैसे डीलिंग करना, वो बहुत सीखने जैसी चीज है। क्योंकि मन बुद्धि हमें दिखाएगा कि ये करना है, ये नहीं करना, तो ये बात सत्संग की बात है। लेकिन सुबह से शाम तक इतने सारे एविडेंस हमको मिलते हैं, उसमें ऐसा ही गड़बड़ होता रहता है। इंसान को दुख है नहीं, लेकिन वो खुद उनकी समझ कैसी है, वो किस पल्ले में बैठता है। बुद्धि की बात मानता है कि दादा की बात मानता है, जो ध्येय है उसकी तरफ चलता है कि लोगों का देख के उस तरफ चलता है, वो हिसाब से उनको परिणाम मिलता है। तो ये रीत, ये टेक्निक हमें सीखने जैसी है, बराबर। दूसरा कि जब हमें सत्संग में जाने का नाम होता है, तो उसी समय दादा भगवान ने बताया कि ये तप होता है। तप समझ में आया? तप महीना कि बुद्धि बोले, मन बोले कि मुझे नहीं जाना है, और हम कहते हैं जाना है। तो जो आप सत्संग के पक्ष में जाओगे तो आपका काम हो जाएगा, आप में शक्ति बढ़ेगी, आपको कृपा देवी देवियों की प्राप्त होगी, और मन बुद्धि समझ जाएंगे कि ये मेरी बात मानते नहीं है। तो धीरे 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 उनके पर आपकी पकड़ आने लगेगी। फिर आपको जिस तरह से जो काम करना है उसमें ये लोग आपको सपोर्ट करेंगे। लेकिन जब मन बुद्धि समझ जाते हैं कि मेरी बातें सुनकर ये मेरे पल्ले में आ जाते हैं, तो फिर आपको धीरे 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 उनको ગુજરાતીમાં એવું કહેવાય છે કે ધીરે ધીરે તમને છે ને બધું પોલું ઢેડ કરી નાખે, એટલે કે પછી તમારું ચલણ રહે નહીં એમાં, તમે પછી કાંઈ ના કરી શકો, પછી બધો એનો હાવ તમારી ઉપર ચડી બેસે, તમે डिपेंडेंट हो जाएंगे। आपको समझ में आया? दर्शना मालूम पड़ा? कोई बोलता नहीं है। तो कितनी बात मन की और बुद्धि की सुनने की, और कई बातों को नहीं सुनने की, वो खुद को डिसाइड करना होता है। और उनके प्रति वो डिसाइड करने के बाद वो हिसाब से उनको परिणाम मिलता है। आपको कौन सी चीज अच्छी लगती है आप बताओ। चलो आप सत्संग में नहीं आए, कोई बात नहीं, चलो तो आपने कौन सा सत्संग से अच्छा काम किया? दर्शना एग्जाम के टाइम में प्रदीप दादा पूछते हैं कि आपने क्या किया ये टाइम में, आधा घंटा में। मैं सो जाती थी 9 बजे। वेरी गुड। नींद आती थी इसीलिए सो जाते थे? हाँ। और रोज 9 बजे सो जाते हो? एग्जाम टाइम में। क्योंकि पढ़ाई का बोर्ड लगता है इसीलिए नींद आती थी? नहीं, फिर सुबह उठ के रिवीजन करते थे। तो अच्छा ठीक है, तो आपको एक दूसरा शॉर्टकट दिखाता हूँ कि जब भी अगर आपको नींद आती है तो आपको सत्संग में आके 2 मिनट के लिए त्रिमंत्र बोल के सभी महात्माओं को जय सच्चिदानंद करके छुट्टी मांग सकते हैं। हम छुट्टी ले सकते हैं। हाँ। ऐसा करने से फायदा होगा? नहीं। फायदा नहीं होगा? होगा। हाँ, तो ये हम क्या कहते थे, तो दादा भगवान ने एक रास्ता दिखाया था। कई महात्माओं को कहते थे कि अगर आपको बहुत काम है, कोई ऐसी परिस्थिति है, तो आपको यहाँ बैठने की जरूरत नहीं, लेकिन यहाँ आने का और जय सच्चिदानंद करके चले जाने का। उससे क्या फायदा होता है प्रदीप दादा?
देखो, हम सत्संग के पक्ष में है। दूसरा, हम जो परिस्थिति है उसको भी संभालते हैं। उनको व्यवहार निश्चय की बात बताया जाता है। आपको समझे? नहीं तो शुद्ध है ये प्रकृति। आज सोने के बहाना दिखाएगी, फिर चांदी का बहाना दिखाएगी, फिर डायमंड का बहाना दिखाएगी। आपको समझ में आया? हाँ, ये हमें बहुत जागृत रहना है, समझना है। सो गए, आपकी जरूरत थी, नो प्रॉब्लम। लेकिन मैं तो इतना कहता हूँ कि आप जय सचिदानंद करके जा सकते हो। तो हमारा लक्ष्य, हमारा निश्चय सत्संग में रहने का होना चाहिए। अगर भी आप सो गए तो दूसरा एक पुरुषार्थ करना चाहिए। हे दादा भगवान, आज मुझे नींद आ रही है, तो मैं सभी महात्माओं को जय सच्चिदानंद करता हूँ। मुझे आज क्षमा करना, फिर से ऐसा संजोग कभी मुझे नहीं मिले, ऐसी दादा मुझे पर कृपा करना। जय सच्चिदानंद। हमारा निश्चय, हमारा लक्ष्य सत्संग में रहने का ही होना चाहिए। अगर हम फिजिकल नहीं रह सके तो अंतर से भी हम प्रार्थना कर सकते हैं। तो दादा ने बोला उसका जमा मैं कर दूंगा, लेकिन इसमें पोल मारने की बात नहीं है। आप समझे? हाँ। दीपक आनंद जी साहब, आपको कुछ बताना हो तो आप आगे जाएगा। पृथ्वी, ये मैं दक्ष के साथ बात कर रहा हूँ कि वो मना खाने का मना क्यों किया था? खाना खाने का दक्ष बताओ, आपने वो पालक पनीर का सब्जी क्यों नहीं खाया था बेटे? अच्छा, देखो, आपको पसंद नहीं है वो टेस्ट क्या के था बारे में। वो बताता है, बोलो। दक्ष बोलो। क्यों नहीं खाया था? क्योंकि उसमें पनीर नहीं थी। उसमें पनीर नहीं था, इसीलिए। अच्छा, तो आप समझो कि मम्मी ने पनीर क्यों नहीं डाला होगा। उनको कुछ तो तकलीफ होगी ना, शायद पनीर घर में नहीं होगा, बाहर से लाना पड़ता होगा। हम दूसरों की तकलीफ देखने के लिए तैयार नहीं है। हम सिर्फ हमारा सुख सुविधा के लिए हम जीते रहते हैं। तो हम कैसे एक अच्छे मानव बनेंगे? देखो, दादा भगवान कहते थे कि कुछ न कुछ तकलीफ होती है तभी ऐसा होता है ना। वो दूसरों की तकलीफ सोचते थे, खुद के सुख को नहीं देखते थे। आप समझे? हाँ। इसलिए उन्होंने उनके सभी फ्रेंड को बोल दिया था, कभी भी पूरी रात को एनी टाइम आपको कोई जरूरत पड़ जावे तो ये अंबालाल को याद करना, मैं आपका काम कर दूंगा। फिर उनके मन में विचार आया कि ये लोग ऐसा सोचेंगे कि मैं अंबालाल को समझो रात को 12 बजे मैंने बुलाया, तो वो भी मुझे कभी रात को 12 बजे बुलाएगा तो मुझे तकलीफ होगी, तो मुझे बुलाना नहीं है। तो दादा को ये समझ में आ गया, तो दादा ने फिर से क्लियर किया कि मैं आपका काम कर दूंगा, लेकिन मैं आपको कभी परेशान नहीं करूंगा। आप समझे? हाँ। तो इसी तरह हमारी सोच अगर जो दादा जैसी होती जाएगी तो हमें बहुत सुख मिलेगा। और कोई चीज आपको ना पसंद है तो थोड़ा लेकर के भी हमें खा लेना चाहिए, लेकिन हमारे व्यवहार से सामने मम्मी को पापा को जो दुख होता है वो दुख का परिणाम हमें भुगतना पड़ता है। ये 9 जो कलम है ना, वो 9 कलम में हर प्रकार की समझ है। पहली प्रातः विधि में आता है, मेरे मन वचन काया से इस जगत के किसी भी जीव को
किंचित मात्र भी दुख ना हो, ना हो, ना हो। आपको समझ में आया? दादा बोले किसी को पता ही नहीं चलना चाहिए कि ये मुझे पसंद है या नहीं। हाँ, इसी तरह जीने का एक तरीका होता है। जिसको ये सीखना है वो सीख सकते हैं, जिसको चिल्लाना है वो भी चिल्ला सकता है। सभी चीजों का परिणाम आता है। आपको कौन से रास्ते पे चलना है? खाने की वैल्यू है, हमारे व्यवहार से सामने वाले को दुख होता है, उनकी वैल्यू है, या ज्ञानी पुरुष ने दिखाए हुए रास्ते और वो समझ को फिट करके चले जाना, इस संजोग में से गुजरना, उनकी कीमत है। किसकी कीमत है आप बताइए? बताओ। मन की बात सुननी है, जीभ का टेस्ट करना है, जीभ का टेस्ट करना है, कि मम्मी को सुख देना है, या ज्ञानी ने बताए रास्ते पे चलना है? सिलेक्शन आपको करना होगा। चाहे चल पाओ या नहीं, लेकिन हमारा लक्ष्य यही होना चाहिए कि इस जगह पे दादा भगवान क्या कहते हैं, ये जो समस्या को कैसे सुलझाया जाए। तभी हम दादा भगवान की तरह अच्छे मानव बन सकेंगे। उसमें कोई बीच में हमारा कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन ये समझ को हमें पहला सुनने का अवकाश मिलना चाहिए, फिर ये बात समझ में आनी चाहिए, फिर हम चल सकते हैं। सर्वप्रथम मैं यही जानता हूं और मेरे समझ में यही रहता है कि मेरे देश के लिए, मेरी कोई भी सुविधा के लिए, मतलब खाने पीने की बात करता हूं, तो किसी को दुख होवे ऐसा व्यवहार क्यों करने का? थोड़ा सा खा लिया, थोड़ा हंसते हंसते थोड़ा कम भी खा लिया तो थोड़ा गिर जाते हैं हम, गिर जाते हो। अगर आपने बिना पनीर की सब्जी खाई तो आपने एक एक्सपेरिमेंट किया कि अंदर जाके वो बाहर निकल जाती है। कौन ना बोलता है कि पनीर नहीं है इसलिए नहीं खाना है? वो अंदर ना बोलने वाला कौन है? वो आप जानते हो कौन है वो? हमें हर कॉर्नर से समझ भी चाहिए और शक्ति खुलनी चाहिए। जो समझ नहीं होगी तो शक्ति खुलेगी नहीं। शक्ति बहुत है, हर इंसान में है, लेकिन उसको शक्ति को खुलने का एक मौका मिलता है, लेकिन ये मौका कई लोग गवा देते हैं, उनका फायदा नहीं उठा सकते। इसीलिए दादा भगवान ने एक बहुत बड़ी बात बताई। दादा भगवान ने बताया कि लोगों को जो नापसंद था वो सब मुझे दे दिया, और उनको जो पसंद था वो मैंने उन लोगों को दे दिया। तो मेरे अंदर भगवान प्रकट हो गए, मुझे अक्रम विज्ञान प्रकट हो गया। आपको क्या करना है? अपने पास और किसी और के पास शक्ति खुली होनी चाहिए। हमें टेस्ट करके देखना चाहिए इसमें क्या क्या गलत, क्या क्या नमक ज्यादा है, मिर्ची ज्यादा है। एक बार थोड़ा तो चखना चाहिए कि नहीं चखना चाहिए? चखना चाहिए। आपने खाया था थोड़ा? हाँ, थोड़ा सा। है? थोड़ा सा खाया था। फिर बाद में क्या किया? बहुत अच्छा है ऐसा बोले थे आप? नहीं। क्यों? क्या अच्छा नहीं था? मुझे थोड़ा सा। सिर्फ एक पनीर के लिए आपने सब्जी को इंसल्ट किया। किसी भी चीज का इंसल्ट क्यों होना चाहिए?
तो हमें ये सब, अगर ये जो सब्जी जीवित होती तो तुरंत आपके सामने मुंह बिगाड़ती। वो दादा भगवान ने रिसर्च किया है, तो बोलती है मैंने तो आपका क्या बिगाड़ा है, आप मेरे लिए, मुझे देख के आप मुंह बिगाड़ते हो। ये सब लोग को अच्छा लगता है और मैं आपके लिए क्यों इतने, मैंने क्या किया है। लेकिन ये सब आपको आगे बढ़ना होगा। तो ये दादा भगवान की सब डिफरेंट रीत है। उसको क्या बोलते हैं समझ में नहीं, हिंदी में शू बोले जरा दीपक आनंद जी? कुछ समझ में नहीं आया, क्या बताया? દાદા ભગવાનની આ બધા વ્યવહારોમાંથી એક જુદી જ જાતની રીત છે આખી, આ કેવી રીતે ડીલિંગ કરવું અને નીકળવું આમાંથી। अलग ही समझ दी है दादा ने, जो वो खुद उसमें से सीख के निकल आए हैं, यानी उनका अनुभव हमें दिया उन्होंने सीधा। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके दर्श, हाँ ओके, दक्ष, सॉरी दर्श नहीं, सॉरी सॉरी दक्ष, समझ गए ना? हाँ समझ गया। हाँ, मम्मा जो बनाते हैं उसको अच्छे से खा ही लेना चाहिए, फिर धीमे से बताने का कि इसमें ऐसा बनाना चाहिए तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। आप नहीं खाएंगे तो उनको दुख नहीं होता है, होता है ना? होता है। ऐसा है, वेरी गुड। हाँ, आप समझ गए, वो बहुत बड़ी बात है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके पद, दर्शना आर यू रेडी? यस। प्रदीपाना जी अब हम पद सुनेंगे। ओके। ओके गो हेड दर्शना। जय सच्चिदानंद। आ दुनियाમાં સર્વે જીવને સુખ ને શાંતિ હોજો રે। આ દુનિયામાં સર્વે જીવને સુખ શાંતિ હોજો રે। મણથી પણ કોઈ જીવનો बुरो विचारे न होजो रे। सामान्य उपकारक बुद्धि अहिंसक चितवन होजो रे। आ दुनियाમાં सर्वे जीवने सुख ने शांति वाणी चित्त दूरी वेलाडे ते रे। लोगों ने दुख आपे देवा कार्याते सुख पोषोरे। आ दुनियाમાં सर्वे जीवने सुख ने शांति होजो रे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ये किसने सिलेक्ट किया ये पद? मम्मा ने किया। ये तो गुजराती में है, तो आपको समझ में आया? हाँ। तो बताएं आप। इस पर बताते हैं कि इस पूरे जग में जितने भी जीव हैं, प्राणी हैं, उन सबको हमारे वजह से दुख ना पहुंचे और हम उनको बस सुख दे और हमको भी सुख मिले। वेरी गुड। तो घर में मम्मी पापा को, भाई को दुख नहीं देना चाहिए ना? हाँ। बहुत अच्छे। फिर आगे सही है, वो उसका मेन मीनिंग यही होता है, बात सही है। वेरी गुड। प्रदीप आनंद जी। हाँ जी। ये पद के बारे में आप थोड़ा समझ दो, 5 मिनट।
ये भावना है, क्योंकि आज हमारा मन वचन काया ऐसा है नहीं कि हर संजोग में, हर परिस्थिति में सबको और सभी जीवों को सुख हो। लेकिन दादा भगवान ने बताया था कि ये भावना आप करोगे तो कॉज एंड इफेक्ट, यानी कि हमारी ये भावना अगर ऐसी होगी तो धीरे धीरे कुदरत में ये कॉज के स्वरूप में जाएगा और फिर ये हमारी शक्ति खुली होती जाएगी। हमारा जीवन, हमारी वाणी, हमारा मन ऐसा हो जाएगा कि फिर किसी भी जीव को दुख ना हो, ऐसा रिजल्ट आएगा। तो आज हम ये भावना कर रहे हैं और ये भावना सबको करनी चाहिए, क्योंकि दादा भगवान ने बताया कि हर एक जीव सुख चाहता है, लेकिन उनको सुख कहाँ है वो उनको पता नहीं है, इसीलिए वो सुख की तलाश में है। तो जब उनको ज्ञानी पुरुष मिल जाते हैं तब सच्चा सुख कहाँ पर है वो दिखाते हैं, क्योंकि हर एक जीव के अंदर खुद का सुख, अनंत ज्ञान अंदर छुपा हुआ है। लेकिन ये ज्ञानी पुरुष की कृपा के बिना ये खुला होना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए ये हम जो भावना के करते हैं तो उसमें पहला हमारा कल्याण होता है, और कुदरत में अगर जो ऐसा संजोग आया तो हमारा जीवन भी ऐसा होता है जैसे दादा भगवान के जीवन में से हमें ये अनुभव में होता है, पता चलता है कि आज भी दादा नहीं है देह के स्वरूप में, फिर भी दादा का नाम सुन करके, दादा की वाणी, दादा का पद, दादा की बातों सुनकर लोगों को बहुत सुख होता है। और कई बार ऐसा भी कई लोगों को होता है कि ऐसा दादा मुझे मिले होते तो बहुत अच्छा। तो इसीलिए हमारा मनुष्य जीवन की यही सबसे बड़ी पूंजी है और यही भावना करने के लिए ही हमारा जीवन है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ये हमारे हम जो सुबह में प्रातः विधि बोलते हैं उसमें पहला वाक्य कौन सा है पता है? श्री सिमंदर स्वामी को नमस्कार। फिर वो तो नमस्कार के बाद कौन सा है? प्रापन वचन काय से जगत के किसी भी जीव को इंच मात्र। राइट। वो दादा भगवान ने हमें सुबह की पहली प्रार्थना में ही ये भाव दे दिया, और दादा भगवान ने कहा कि जो यह भावना करते हैं, ये भावना का ही लक्ष्य है, उनको मैं मोक्ष ले जाऊंगा, उनकी मोक्ष की जिम्मेदारी मेरी। बोलो, ये दादा की बात है। उसी तरह से आप डैडी मम्मी को सुनेंगे, फॉलो करेंगे, तो आपकी सुख की जिम्मेदारी मम्मी डैडी की हो जाती है। बोलो, उनकी खुशी में आपकी खुशी। चलेगा इसे? चेन्नई नहीं मानता है। दर्शना, आप मानते हो? नहीं। नहीं मानते हो? उनकी खुशी में आपकी खुशी नहीं है। डैडी है। मम्मी जिसमें खुश है उसमें आपकी खुशी है ना? हाँ। यही रखना है। दक्ष कहाँ चले गए? अच्छा नहीं है। दक्ष आप हो? हाँ मैं हूँ। हाँ, मम्मी की खुशी में, दीदी की खुशी में आपकी खुशी है, ऐसा रखेंगे तो आप कभी दुखी नहीं होंगे। समझ में आया? हाँ। ये रखना है तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। और दादा ने क्या कहा? दादा की भावना यह है कि जो मन वचन काया से किसी को भी दुख नहीं देना चाहते उनको मैं मोक्ष में ले जाऊंगा, ये बात है। तो आज का लक्ष्य हम यही रखते हैं कि क्या महात्मा अपने अनुभव कह सकते हैं कि किस तरह से हम लोगों को, हमसे लोगों को दुख हो जाता है और उसका हम प्रतिक्रमण करते रहते हैं। जय सच्चिदानंद बच्चों, कल मिलेंगे। थैंक यू दर्शना, आपने बड़े अच्छे से गाया। ऐसे ही आके प्रैक्टिस करके, हाँ, और सत्संग हाफ एन आवर मिस नहीं करना है। सत्संग की दो बातें भी अगर हमारे कान में पड़ती है ना
तो अंदर बहुत कल बड़ा का परिवर्तन आता है। हाँ बोलो दक्ष बेटे, बोलो। कल का होमवर्क हाँ कल का होमवर्क बताया ना कि हम डैडी मम्मी को यानी अपने गुरु को आप मम्मी को कितने बार यस या नो कहा, या दीदी अभी है ना घर पर के नहीं है? है। हाँ तो दीदी को कितनी बार आपने यस कहा या नो कहा, वो आप नोट करना और कल बताना। हाँ हाँ बच्चों सब समझ गए? हाँ जय सच्चिदानंद। खुशी अहमदाबाद। और दीदी को बताना कि ये अपना उसमें लिख दे होमवर्क में, मैसेज में। दीदी आ गई कि नहीं आई अभी? ठीक है तो आए तो बता देना। हाँ जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। थैंक यू। जय सच्चिदानंद। कल मिलेंगे। दिव्या आप भी सच्चिदानंद। डैडी को मम्मी को कितनी बार यस नो कहा बताना। जय सच्चिदानंद।